Hey guys, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. In the today's video, we are finally going to do the last chapter of the Indian Economic Development for class 12th, जो कि है Development Experience of India, Pakistan and China, a comparative study. हम एक playlist बना रहे थे in which we are going to cover the entire course of the Indian Economic Development for class 12th, जिसमें 11 chapters हैं. So I have made 11 videos. सारी की सारी videos you can find in the playlist section. जाके देखिए. The link is there also in the description box below, so do check it out. All right, so let's quickly start कि इन तीनों economies को हम क्यों compare करते हैं and what actually are we inferencing out of the comparison. Let's see. सबसे पहले तो वाई शुड वी कंपेयर देम. नंबर वन, इन तीनों इकोनॉमीज ने अपनी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट की थी. तीनों को इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मिली थी. हमें पता है इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 whereas China got independence in 1949. So that's a very similar time period. तीनों के तीनों ने सिमिलर 5 ईयर प्लान्स को फॉलो किया था. इंडिया ने 1951 से अपने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए थे, चाइना ने 1953 से स्टार्ट किए थे और पाकिस्तान ने 1956 से अपने 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था. एंड इंडिया पाकिस्तान ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया था, वेराज चाइना अडॉप्टेड स्टेटिज्म. स्टेटिज्म का मतलब होता है जब गवर्नमेंट सारे के सारे डिसीजंस लेती है. बेसिकली द एंटायर इकोनॉमी इज वर्किंग अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे हम सोशलिस्ट सिस्टम भी कह सकते हैं. सो ये कुछ रीजंस हैं. हम इन तीनों इकोनॉमीज को ही आपस में कंपेयर करते हैं. हम क्यों इंडिया और यूएस की इकोनॉमी को कंपेयर नहीं करते? बिकॉज यूएस इज अ फार डेवलप्ड इकोनॉमी, बिकॉज दैट इकोनॉमी हैज नॉट बीन रूल्ड ओवर बाय एनीवन. वो शुरू से लेके प्रोग्रेस कर रहे हैं. वेयर एज इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, वी कॉल देम यंग इकोनॉमीज. ये ऑलमोस्ट यंग इकोनॉमीज हैं बिकॉज इट्स बीन less than 70-80 years or around 70-80 years when these economies have got independence. और एक्चुअली में तभी से हमारी ग्रोथ स्टार्ट हुई है. सो इसलिए हम उन्हीं जो सिमिलर इकोनॉमीज हैं उन्हीं को कंपेयर करते हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड हाउ दीज इकोनॉमीज आर परफॉर्मिंग एज कंपेयर टू ईच अदर. इनकी रिलेटिव परफॉर्मेंसेज हम स्टडी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे चाइना की ग्रोथ स्ट्रैटेजी. चाइना ने सिंस इंडिपेंडेंस टिल टुडे क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की थी. First was government control. As I told you, China adopted the statism type of economy. Mixed economy नहीं थी. So there was an entire government control. सारे के सारे resources will be owned and controlled by the government. Then comes the great proletarian cultural revolution. First of all, proletarian का मतलब क्या होता है? वो section of the society जो कि working हो, जिनके पास basically अपनी general meaning है proletarian का, when the people do not own anything or let's say a little backward sort of a people, उन्हें हम proletarian class कहते हैं. तो great proletarian culture revolution का मतलब होता है यहाँ पे चाइना what did they do or what was the strategy that pick up the students and professionals from the rural areas and send them to schools and colleges and to learn. So basically this was a very very good strategy to educate the entire population. That is very good because an educated man is a contribution to the economy. So this was a revolution that this started in 1965. देन डुअल प्राइसिंग सिस्टम. चाइना ने एक डुअल प्राइसिंग सिस्टम अडॉप्ट किया क्योंकि ये एक स्टेटिज्म इकोनॉमी है, तो सब कुछ ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में था. सो दे फिक्स्ड द क्वांटिटीज एंड द प्राइजेस which they can buy and sell from the government. So buy and sell fixed quantities at fixed prices with the government, and if you are producing over and above that you can sell it at the market prices. So here the people will get a motivation to produce more than what is required because there's a fixed quantity that they have to deal with the government, and over and above they can buy and sell in the market. So this was a dual pricing system adopted. Then comes the great leap forward. 1958 में they it was a plan, the great leap forward. मतलब हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा जंप अप करना है. फॉर दिस दे फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, set up as many industries as you can. And today this is the reason today China is almost the manufacturing hub for the entire world. In world की almost कितनी सारी production China में होती है because of these kinds of policies. So they try to modernize the economy by rapid industrialization. जल्दी जल्दी industries को set up करना है and modernization economy में लेके आनी है. Reforms in phases. They obviously planned their changes. Reform का मतलब होता है इकोनॉमी को चेंज करना, रीफॉर्म करना, दोबारा से बनाना. So these reforms came into phases. In the phase 1 they focused on agriculture, foreign trade and investment, and the second phase they focused on the industrial sector. एंड लास्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो कि इंडिया में भी हैं. ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट किए गए जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आके अपना काम करवा सकती हैं. एज वी हैव सीन इंडिया में देयर आर सो मेनी MNCs वर्किंग. बहुत सारा आउटसोर्स होता है काम, बाहर की कंपनीज का काम इंडिया के लोग करते हैं. सो similarly special economic zones were set up in China.
इससे बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं. सो दीज वर ऑल्सो सेटअप इन चाइना. दिस वॉज चाइनाज मोर और लेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी. ये कुछ 6 मेजर स्ट्रैटेजीज चाइना ने अडॉप्ट की थी सिंस इंडिपेंडेंस. मूविंग अहेड, देयर कम्स द पाकिस्तान ग्रोथ स्ट्रैटेजी. पाकिस्तान अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि हमने अडॉप्ट किया हुआ है. Certain sectors will be restricted with the government, other sectors are open to the private sector. Green revolution जो कि इंडिया में भी आया था. Similarly, green revolution came in Pakistan also. As we all know, since Pakistan, the climate of Pakistan or the terrain of Pakistan is more or like an agricultural country. इंडिया की तरह पाकिस्तान भी एक agricultural country है. तो वहाँ पे भी जब प्रोडक्शन में बहुत मेजर चेंज आया था तो उसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन फेस कहते हैं, विच केम इन 1953. प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, पाकिस्तान केम अप विद पॉलिसी जिसमें कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो कि इन हाउस प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है. सो इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस, इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लाई गई टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म फॉर प्राइवेट सेक्टर. Again, as India, Pakistan also realized the importance of the private sector in the economy. They realized that सारी की सारी प्रोग्रेस गवर्नमेंट नहीं कर सकती. सो देयर हैज टू बी सेक्टर्स ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स were brought up in 1988. And financial support. This is one of the very important point. Pakistan has since the beginning got a lot of financial aid from outside developed economies. बाहर की developed countries ने शुरू से ही पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक financial aid दिया है. So since beginning Pakistan's growth has more or less been because of the financial support received from the outside countries. So this was Pakistan's growth strategies. Moving ahead, अब यहाँ पे हम compare करेंगे. Here I have prepared a very beautiful chart जिसमें हम compare कर सकते हैं in the 3 economies, और इसके comparison के basis पे we can draw the conclusion by ourselves. तो ये है demographic indicators. Demographic indicators मतलब demo means people. तो ऐसे indicators जो लोगों के बारे में बताते हैं. First, let's talk about population. China's population 1371 million, India's population 1311 million, and Pakistan's population 188 million. ये पता ही है. China's population, I think as of today, India's population has crossed China's population, but अभी तक China was the number 1 in population, India was number 2, but I think now the ranks have changed. Population growth की बात करें, so China had less than 1%. Why? Because in 1980s, China came up with a one-child policy, which was a very smart policy, where people were not allowed to have more than one child, और इसकी वजह से उनका population growth बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आया. India's population growth is 1.2%, which has now become stable, but 1980s में हमने एक population explosion का phase देखा था इंडिया में, where the growth rate of population went more than 25%. इसके ऊपर भी वीडियोज़ हैं on my channel, you can definitely check them out. एंड पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है 2.2%, ऑल्दो इट इज़ ग्रेटर देन बोथ द, बट क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है 188 मिलियन, तो ये 2.2% इज नॉट दैट बिग ऑफ अ फिगर. देन कम्स पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग आपकी कंट्री में रहते हैं. एक्चुअली में नहीं रहते हैं. वी जस्ट व्हाट डू, वी डिवाइड द एंटायर पॉपुलेशन बाय द पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया. बिकॉज चाइना इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम है, ऑल्दो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इनका पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, विच इज़ 146 पर स्क्वायर किलोमीटर. ऑन दी अदर हैंड इंडिया का है 441 पर स्क्वायर किलोमीटर. क्यों? इंडिया इज ऑल्सो लार्ज कंट्री, बट वी स्टैंड 7th इन द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए 441 पर स्क्वायर किलोमीटर है. ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान का एरिया बहुत छोटा है, बट पॉपुलेशन भी बहुत कम है, इसलिए उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है. इट इज़ समवेयर बिटवीन 245 पर स्क्वायर किलोमीटर. Then comes sex ratio. Sex ratio is number of females divided by per 1000 males. यानी कि जितने 1000 men आपकी इकोनॉमी में हैं उसके कंपेरेटिवली कितनी women आपकी इकोनॉमी में हैं. So in China it is 941, which is 941 women per 1000 men. India it is 929 and Pakistan it is 947. So here India has the lowest figure, which is a very bad picture. All the way 941 और 947 भी बहुत अच्छी पिक्चर्स नहीं है, because per 1000 ये फिगर ठीक लग रहा है, but if you talk about the entire population, so that means number of women are pretty less, and this shows the mentality of the people to prefer a male child over a female child. इससे हमें gender biasness दिखाई देती है in the economy. Then comes fertility rate. Fertility rate होता है how many birth does one woman give. So China it is 1.6 births, India it is 2.3 births, and Pakistan it is 3.7 births. ये basically directly related होगा टू द पॉपुलेशन ग्रोथ. जिस तरीके की पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उसी हिसाब से फर्टिलिटी रेट भी होगा. सो चाइना में पता है पॉपुलेशन ग्रोथ इज द लीस्ट, लेस देन 1%, तो फर्टिलिटी रेट इज 1.6. इंडिया में इट इज 1.2%, तो फर्टिलिटी इज 2.3, एंड पाकिस्तान में द ग्रोथ रेट इज द हाइएस्ट, विच इज 2.2%,
Therefore, the fertility rate is again the highest, which is 3.7 births. And then comes urbanization. Urbanization means number of people or percentage of people living in the urban areas. यानी कि modern areas में कितने लोग रहते हैं. तो चाइना में it is the highest 56%. That is more than half of the population is living in the urban sectors. India में it is 33% and Pakistan में it is 39%. That means only 1/3 of the population is living in the urban sectors. 2/3 of the population आज भी रूरल एरियाज में यानी कि बैकवर्ड एरियाज में रहती है. सो these are some demographic indicators of China, India and Pakistan. Moving ahead, we have human development indicators यानी कि HDI स्कोर की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज HDI स्कोर? HDI स्कोर जनरली 1 होता है. So 1 is the highest HDI score. So if the HDI score is more than 0.75, it is a very good picture. Those countries are ranked one of the best countries in terms of HDI. So China का HDI score है 0.738, which is again a good HDI score. And if we talk in terms of rank, China की rank आती है 91. इंडिया का HDI स्कोर है 0.624, विच इज़ एन एवरेज स्कोर. और रैंक की बात करें, इंडिया स्टैंड्स 131 और पाकिस्तान का स्कोर है 0.550, विच इज़ नॉट अ गुड स्कोर. और रैंक की बात करें, इट रैंक्स 148. तो इससे हमें पता चलता है HDI स्कोर बेसिकली बहुत सारे इंडिकेटर्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है. एजुकेशन लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस तरीके के बहुत सारे मेजर्स हैं जिसके बेसिस पे HDI स्कोर कैलकुलेट किया जाता है. अगेन आई हैव अ वीडियो ऑन माय चैनल जिसमें मैंने HDI स्कोर को या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. डू चेक दैट आउट. देन कम्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन एन एवरेज. China has the highest, which is 76 years. India has 68.3 and Pakistan has 66.4. This is almost not very, obviously China stands highest, but again, India, Pakistan also have a decent life expectancy score. Population density we have done in the last slide. Infant mortality होता है. Infant mortality is number of deaths per 1000 births before the age of 1 year. So 1 year से पहले जितने 1000 births होते हैं उसमें कितनी deaths होती हैं. सो चाइना में है 9, विच इज़ वेरी लो एंड इट इज़ अ वेरी गुड पिक्चर. जितना लो इन्फेंट मोर्टालिटी होता है इसका मतलब आपकी मेडिकल अवेलेबिलिटीज़, मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं. इंडिया में इट इज़ 38 एंड पाकिस्तान में इट इज़ 66, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड पिक्चर. India's infant mortality is still not a good picture but not a very bad picture as well. Then comes head count ratio. Head count ratio हम पढ़ चुके हैं. That is the number of a percentage of people living below the poverty line. Here almost all the 3 countries are not doing very good. China's again 1/3 population is below poverty line. Similar for India and Pakistan it is 44% number of percentage of people living below the poverty lines. And undernourished population, that means these are the people who are not getting the required amount of nutrients per daily consumption basis पे. So China का है 9% of the population. Again that means a very less population is undernourished. A good amount of people are nourished. Percentage of people are well nourished. India में it is 39% and Pakistan में it is 45%. Moving ahead, और इंडिकेटर्स भी हैं यहाँ पे अब बात करेंगे हम GDP ग्रोथ इन सेक्टर्स की. यानी कि GDP ग्रोथ के बेसिस पे व्हाट इज द कंपैरिजन. चाइना का GDP ग्रोथ रेट है 9.5%, प्रिटी इम्प्रेसिव, ऑलमोस्ट 10%. इंडिया का ग्रोथ रेट है 5.8% और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है 4.1%. अब यहाँ पे सेक्टर एंगेजमेंट होता है हर सेक्टर में, मतलब आउट ऑफ द 100% पॉपुलेशन what percentage of people are working in primary sector, what percentage of people are working in secondary sector and what percentage of people are working in tertiary sector. तो चाइना में 28% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, 29% लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं एंड 43% लोग टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंड वी कैन सी मेजॉरिटी लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं. ये दिखाता है दैट द इकोनॉमी हैज़ बीन मॉडर्नाइज्ड. इंडिया और पाकिस्तान का ये जो सेक्टर एंगेजमेंट है ऑलमोस्ट सिमिलर है. इंडिया में 47% एंड पाकिस्तान में 42% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं. फॉर सेकेंडरी सेक्टर द रेशियो इज 22 and 22 इन बोथ द कंट्रीज एंड इन टर्शरी इट इज अगेन 31 and 35. दिस इज एन ऑलमोस्ट सिमिलर एंगेजमेंट एंड दिख रहा है कि दोनों इकोनॉमीज में मेजॉरिटी ऑफ द लोग आज भी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं. इससे पता चलता है द इकोनॉमीज हैव नॉट बीन मॉडर्नाइज्ड एज दे शुड हैव बीन. एंड लास्ट आता है सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है. तो चाइना में प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में 8% कंट्रीब्यूट करता है, सेकेंडरी सेक्टर 41% कंट्रीब्यूट करता है एंड टर्शरी सेक्टर 51% कंट्रीब्यूट करता है. सो हेयर वी कैन सी प्राइमरी सेक्टर में लोग भी कम एम्प्लॉयड हैं और प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी कम है, जिससे अगेन हमें पता चल रहा है द इकोनॉमी हैज मॉडर्नाइज्ड. एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस हियर इज 41% कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का है. यानी कि चाइना का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वेल डेवलप्ड है
और उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है, विच इज़ अ कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, 15% प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है. 47% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% है. इससे पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कितनी कम है. सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 23% है और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 62% है जीडीपी में. 30% लोग टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन 62% है. इससे पता चलता है कि टर्शरी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कितनी हाई होती है. And similarly for Pakistan, we can see primary sector contribution is 24%. Secondary sector का contribution as you can see 19% है, यानी कि industrial sector बिल्कुल भी well developed नहीं है पाकिस्तान में, because the GDP contribution is very very less. And on the other hand, tertiary sector का contribution 57% है. तो ये indicators जो कि यहाँ पे comparative study है, these clearly show that China has done commendable efforts since independence in terms of growth and development in terms of every sector. And India and Pakistan are still working moderately. तो यहाँ पे एक कंक्लूजन है रिगार्डिंग द स्टडी. इंडिया की बात करें, इंडिया हैज़ परफॉर्म मॉडरेटली वेल. वी आर स्टिल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, बट स्टिल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. आज भी हमारी 1/4 पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, विच इज नॉट अ गुड पिक्चर. सो द इंडियाज progress we can say has been moderately well. When we talk about Pakistan, on the other hand, the progress has not been commendable at all. There has been political instability. ओवरऑल डिपेंडेंस है फॉरेन एड्स में. मैंने आपको बताया है पाकिस्तान में शुरू से ही फॉरेन सपोर्ट या फॉरेन एड बहुत ज़्यादा रहा है, तो इसकी मेजर डिपेंडेंस वही है. एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी पाकिस्तान का बहुत वॉलेटाइल है. एंड वी नो द टुडे सिनेरियो, अगर मैं आज की बात करूँ, वी नो दैट द पाकिस्तान इकोनॉमी इज ऑन द इज suffering from the largest financial crunch since independence. So the economy is almost crashing down. And on the other hand, if we talk about China, they have done a remarkable growth since independence. उनका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जीडीपी इंडिकेटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट चाइना हैज़ ऑलवेज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स, बिकॉज दिस इकोनॉमी टिल डेट फॉलोज द स्टेटिज्म पॉलिसी. आज भी स्टेट सब कुछ ओन एंड कंट्रोल करता है. सो दिस इकोनॉमी हैज जनरली बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स पॉलिटिकल फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स. So that was about it. This is a comparison of the India, Pakistan and the China's economy. सारे facts आपको याद करने की जरूरत नहीं है. Just understand the facts. तीनों इकोनॉमीज को समझो कि इकोनॉमीज क्या है, इनकी स्टोरीज क्या है, इनकी स्ट्रैटेजीज क्या है. द इन्फॉर्मेशन विल ऑटोमेटिकली कम टू यू. एंड एग्जाम में अगर आए, इफ यू कैन जस्ट रिमेंबर 5 or 6 ऑफ द फैक्टर्स, सिर्फ 5 or 6 फैक्टर्स को याद कर लो, उनके नंबर्स याद कर लो, उसके बाद कंक्लूजन आप अपने आप लिख के आ सकते हो. वन थिंग आई वुड लाइक टू अगेन से, इफ आई गो बैक टू द स्लाइड्स, इस तरीके का जैसे कंपैरिजन है एग्जाम में, इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट गिव अ हेडिंग जीडीपी ग्रोथ रेट, राइट डाउन अबाउट चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, and instead of writing just 9.5%, explain the growth has been remarkable, it has been around 10%. आपको 9.5% exactly याद करने की जरूरत नहीं है. You can say the growth has been around 10% and these are the reasons. तो इस तरीके से भी आप अपने आंसर्स लिख के आ सकते हो. You don't have to remember each and every figure. So I hope you understand the video. I hope you like the video. So this brings me to the end of the complete playlist of the Indian economic development. बहुत मेहनत लगी है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाने में. I hope this helps you in examinations. And if you like the video, do tell me in the comment section. Till then, keep learning. Thank you so much.